If you don't practice the PYQs, you are not going to qualify mains. You are not going to clear mains. और अगर भूल से मैं बता रहा हूं 1 या 2% कर भी गए, उनका स्कोर नहीं होगा इतना ज्यादा कि वो इंटरव्यू से ज्यादा मतलब बेसिकली दे गेट अ फाइनल रैंक. So my point is there is too much interlinkages. You should not be saying that okay sir ये GS paper 1 के PYQs देख लूं या सिर्फ 2 के देख लूं. You should have a very decent understanding. 27 out of 60, almost 50% of the paper in mains 2025 has been asked from the previous PYQs. 60 में से 60 में से अगर आपके 27 क्वेश्चंस सिर्फ PYQ से हो रहे हैं, what is harm in this? Hello and welcome students to Pulse IAS. Myself, Amit Mangtani. Guys, I'm pretty sure आप में से काफी ऐसे लोग होंगे who must be realizing the importance of mains PYQs. And let me give you a very bold statement here that if you guys are not going through the mains PYQs, let me tell you, you are not going to clear the mains examination. शायद आपको mains PYQs की importance पता ही नहीं है. अगर आप लोग सोचते हैं कि प्रीलिम्स PYQs इंपॉर्टेंट है, लेट मी टेल यू मेंस PYQs आर मच 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 मोर इंपॉर्टेंट देन द प्रीलिम्स PYQs. एंड व्हाई इज इट सो? द रीजन नंबर 1 कि नॉट ओनली आप लोगों को एक ट्रेंड पता चलता है दैट ओके व्हिच टॉपिक्स आर मोर इंपॉर्टेंट, दैट इज फाइन, बट द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज you will see the questions directly based on PYQs in the mains examination. And that is the reason why we are here. I am going to show you here that for each GS paper, how many questions have PYQ linkages. मैं हैरान हो गया जब मुझे देखा, मैंने GS2 का मैं पेपर लिंक PYQ लिंकेज बना रहा था, and I was like that yes, I was saying this paper to be the toughest among all papers. बट आपको जब मैं PYQ linkages दिखाऊंगा, you will be realizing that sir GS paper 2 has the most PYQ linkages. तो reason why we are saying it's so tough, possibly उस एंगल से उस थीम को शायद स्टूडेंट्स ने कवर ही नहीं किया होगा. So I was surprised to see that okay, that many questions have been asked from the GS paper 2 PYQs itself, and I'll show you one by one each question. I am going to dissect it here. GS1, 2, 3, everything I am going to dissect so that you realize the importance of mains PYQs, guys. You realize the importance of mains PYQs. And let me tell you guys that mains PYQs, discussion of mains PYQs along with the model answers is a very, very core component of our mains funnel. That is our ultimate mains program. Now let me talk about the PYQ linkages. Let me start with GS1. Clearly it is mentioned that 7 out of 20 questions in GS1 have PYQ linkages. 7 out of 20. लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं, GS1 में जो एक्चुअल में क्वेश्चंस आए हैं मेंस एग्जामिनेशन में, उसका लिंकेज जो है वो GS पेपर 1 PYQ से ज्यादा GS पेपर 3 PYQ से, बट लिंकेज तो लिंकेज है. GS पेपर 1 में लेट मी शो यू गाइस दिस क्वेश्चन नंबर 4. ये जो है दिस इज द एक्चुअल नंबर दैट हैज बीन आस्क्ड. क्लियर? लुक एट दिस क्वेश्चन. हाउ आर क्लाइमेट चेंज एंड द सी लेवल राइज अफेक्टिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ मेनी आइलैंड नेशंस? डिस्कस विद एग्जांपल्स. This was the question asked in environment, GS paper 3, environment section in 2023. What was its question? The IPCC has predicted a global sea level rise of 1 meter by 2100 AD. तो आप कहीं ना कहीं इसमें पढ़ोगे ना that how the impact of climate change and sea level are linked, yes or no? And that increase in sea level, what would be its impact in India and the other country in the Indian Ocean region? And generally, which countries in the Indian Ocean region? That is many island countries, low-lying coastal states. So don't you think, देखो अब आप बोलोगे कि सर पूरा का पूरा आंसर PYQ से मिल जाए, तो बाबू वो तो नहीं हो सकता ना. बट अगर आपको मोर देन 50%, मैं वहां पे वो PYQ लिंकेज लेकर आया हूं जिसमें आपका PYQ का जो कंटेंट है that can answer more than 50% of this year paper, then I have
टोल्ड दैट ओके दिस इज पीवाईक्यू लिंकेज, और ये तो 50 का, ये तो 80% आंसर कर देगा, 80%। बट इसका लिंकेज, अच्छा आप बोलो सर नहीं ये तो जीएस पेपर 3 में है, तो मैं आपको कब बोल रहा हूं कि आपको सिर्फ जीएस पेपर 1 के पीवाईक्यूज करने हैं या 2 के करने हैं? आपको पीवाईक्यूज करने हैं तो पूरे करने हैं फॉर मी, क्योंकि यहां पे ऐसा नहीं है ना कि आप सोचो अच्छा जीएस पेपर 1 का सिलेबस जीएस पेपर 1 में ही पूछेंगे। नो, पूछ लिया ना जीएस पेपर 3 का भी कंटेंट इतना ज्यादा जीएस पेपर 1 में। अगर ये एनवायरमेंट का सेक्शन या डिजास्टर का सेक्शन जीएस पेपर 1 में कम होता है तो पता है इकोनॉमी का एग्रीकल्चर डाल देते जीएस पेपर 1 में। So my point is there is too much interlinkages. You should not be saying that okay sir ये GS paper 1 के PYQs देख लूं या सिर्फ 2 के देख लूं. You should have a very decent understanding. Clear? Done? Second, explain briefly the ecological and economic benefits of solar energy generation in India with suitable examples. Look at this question asked in 2020. Describe the benefits of deriving electric energy from sunlight. That means the energy, solar energy, in contrast to the conventional energy. So this benefits यहां पे जो मैं बताऊंगा, यहां पे तो मैं आपको मल्टीपल बेनिफिट्स बताता, environmental benefits, economic benefits, social benefits, yes or no. But यहां पे क्वेश्चन सिर्फ इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक पूछे. What are the initiatives? इधर ये क्वेश्चन तो ज्यादा बड़ा है, इनिशिएटिव्स भी क्या क्या लिए गए वो भी आप बता दोगे. Clear? Apart from that, discuss with suitable examples. एक और क्वेश्चन आया हुआ है, ये आपका GS1 में था, ये GS3 में पूछा गया. दिस इज GS3, बट ये आपका GS1 में पूछा गया था. India has immense potential of solar energy, though there are regional variations in its development. तो आपको बताना है ना डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में कहां सोलर एनर्जी का पोटेंशियल ज्यादा है. क्लियर हो गया आंसर कंप्लीटली. ये दोनों क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो विच विल बी ऑलमोस्ट 80% कैन बी आंसर्ड फ्रॉम द पीवाईक्यूज. नेक्स्ट, लुक एट दिस. व्हाट आर सुनामीज, हाउ एंड वेयर आर दे फॉर्म्ड, व्हाट आर देयर कॉन्सिक्वेंसेस, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स. एग्जांपल्स मतलब आप वहां पे इवेंट्स बता दोगे ना सुनामी के, यस और नो. अब इसको हम लोग ने इवन हमारे नोट्स में या कहीं भी हम लोग जीएस पेपर 3 में ज्यादा अच्छा कवर करते हैं. और देखो जीएस पेपर 3 में इट हैज बीन आस्क्ड इन 2017. On December 2004, tsunami brought havoc on 14 countries including India. Factors responsible for the occurrence of tsunami. How are they formed? What are tsunamis? How are they formed? क्या आप यहां पे नहीं पढ़ोगे? Definitely PYQs में पढ़ोगे. And its effect on life and economy. क्या consequence आ गए नहीं आ गए on life and economy? Not only that, जब आप ये सुनामी का क्वेश्चन कर रहे होगे, आई एम वेरी मच श्योर जो भी आपसे कर रहा होगा, जो भी आपको पढ़ा रहा होगा, they would definitely be highlighting you the recent tsunami events. जैसे हम लोगों ने जो नोट्स तैयार किए हैं, we give the for any disaster, हमने 1 पेजर नोट जो तैयार किए, जो भी इवेंट है डिसास्टर, कोई भी, चाहे अर्बन फ्लड हो, चाहे आपका ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड हो, लैंडस्लाइड्स हो, हर एक का एक टेम्पलेट बनाए, रीसेंट इवेंट्स इन द लास्ट 5 years, ताकि आपके पास इंसिडेंट्स हो, एग्जांपल्स हो काफी सारे बताने के लिए. क्लियर? डन. दिस इज आल्सो 80% कैन बी आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज स्मार्ट सिटी इन इंडिया एड्रेस द इश्यू ऑफ अर्बन पॉवर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस? ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मैं ये नहीं बोलूंगा ये कंप्लीटली आपका 80 या 100% आंसर होगा, बट स्टिल यू सी, लुक एट दिस PYQs, 2 questions on smart city. What are smart city? चलो यूज कर लोगे इसका कंटेंट. Examine their relevance for urban development in India. अगर आपका इसका रेलेवेंस पता है अर्बन डेवलपमेंट के लिए, that itself can help in addressing the issue of urban poverty. बाकी चीजों की जरूरत भी नहीं है ऑनेस्टली, ये जो पार्ट है ना, ये जरूरत भी नहीं है. उसके अलावा भी राइट अ ब्रीफ बैकग्राउंड ऑफ क्वालिटी ऑफ अर्बन लाइफ इन इंडिया, इंट्रोड्यूस द ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटजीज. ऑलरेडी जब आप ये क्वेश्चन करते हो ना, तो ये इसका आंसर कहीं ना कहीं कर लेते हो. बट यू सी, अब आप बोलोगे सर 100%, 80%, मैं कहूंगा शायद 80-100 नहीं, बट हाँ 60 to 65% दिस क्वेश्चन कैन हेल्प, दिस PYQ कैन हेल्प इन आंसरिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. नेक्स्ट,
So trace India's consolidation process during early phase of independence in terms of polity, economy, education and international relations. वैसे तो इसका आपका जो मेजर है वो आप यहीं पे पढ़ रहे हो, उसके 2-3 क्वेश्चंस आए हुए हैं, बट मेनली जो क्वेश्चन आया है दैट इज मोर अबाउट पॉलिटिकल रीऑर्गेनाइजेशन. बट क्वेश्चन जो इस बार पूछा है वो सिर्फ पॉलिटिकल रीऑर्गेनाइजेशन नहीं, वो इकोनॉमी भी, एजुकेशन भी, इंटरनेशनल रिलेशंस. बट मैं वेरी मच श्योर कि आप लोग जो आंसर लिख कर आए उसमें से 50% आपका ना पॉलिटी होगा क्योंकि पीवाईक्यूज में जनरली पॉलिटिकल रीऑर्गेनाइजेशन ही पूछा गया या प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन पूछा. दैट्स इट. क्लियर? नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन गाइस. The French Revolution has enduring relevance to the contemporary world. Explain. This is 2025. Look at here, 2019. Explain how the foundations of the modern world were laid down by the American and French Revolution. How the foundations of the modern world were laid by the American and French Revolution. Can you understand this? है ना सही? बस इसमें सिर्फ फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, सिंपली बस ये बताना चाह रहे हैं कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है, हाउ दिस अमेरिकन एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन्फ्लुएंस दिस मॉडर्न वर्ल्ड. तो यही तो क्वेश्चन बस यहां पे पूछा है, सिर्फ यहां पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन पूछ ली. दैट्स इट. क्लियर? नेक्स्ट सर, गिव अ ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑफशोर ऑयल रिजर्व्स ऑफ द वर्ल्ड. हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम द ऑनशोर अकरेंसेस ऑफ ऑयल रिजर्व्स? हाउ आर दे डिफरेंट? लेट अस सी. Sir, discuss the multi-dimensional implications of uneven distribution of mineral oil in the world. तो पहले आप implication से पहले क्या आप ये कंटेंट आंसर नहीं करोगे इस क्वेश्चन में? अगर नहीं करोगे तो इसलिए आपके नंबर कम आ रहे हैं पहले से. You have to answer uneven distribution of mineral oil. और यहीं पे आप क्या डिस्कस नहीं करोगे ऑनशोर ऑफशोर? That was the question asked. एक और क्वेश्चन आया हुआ है. Petroleum refineries are not necessarily located near to crude oil areas, particularly many of the developing countries. Examine its implications. थोड़ा less linkage है, but why I am highlighting this? This can help in answering almost 60-70% of the question. But मेरा point ये है कि यार अगर ये क्वेश्चन भी है तो आपको पता है यार कि ये थीम इतनी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि mineral oil that has to be discussed here. Mineral oil that has to be like कि उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहां पर है, उसका इंप्लीकेशंस क्या है, क्या मेजर्स लिए गए हैं, व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स, वहां तक आपको छोड़ के तब आपका ये पीवाईक्यू कवर होगा. एंड देन यू सी दिस ईयर यू कैन आंसर दैट. 7 out of you see 1 2 3 4 5 6 7 out of 20 questions in GS1 have pivot linkage, which can help you in answering 60 to 80% of, which can give you in answering 60 to 80% of the content. Clear? Next, 13 out of 20 question in GS2. Surprise ना? देख रहे हैं हम लोग GS पेपर 2 को टफ बोल रहे हैं, but when I went into the detail of the PYQs, और सिर्फ डिटेल कहने का मतलब ये नहीं कि अच्छा सर डायरेक्टली क्वेश्चन सेम है, नो. मैं ये देख रहा हूं कि यार यहां पे जो मैं आंसर लिखता उसमें से कितना आंसर मेरा पीवाईक्यू जो आज का क्वेश्चन है 2025 का क्वेश्चन है, कितना आंसर हो पाएगा, कितना हो पाएगा. लेट अस सी. ये क्वेश्चन वन ऑफ द टफेस्ट बोला है. डिस्कस द करप्ट प्रैक्टिसेस फॉर द पर्पस ऑफ आरपी एक्ट. देन देयर इज एन एनालिसिस दैट यू हैव टू डू इट, व्हिच वुड इट कॉन्स्टिट्यूट अनडू इन्फ्लुएंस एंड कॉन्सिक्वेंटली अ करप्ट प्रैक्टिस. आई थिंक ऑलरेडी जो हम लोगों को फॉलो कर रहे हैं टेलीग्राम में और जिन्होंने पल्स हैंडरिटन नोट्स दिया हुआ है, दिस क्वेश्चन कैन बी 80% आंसर्ड फ्रॉम अवर नोट्स. 80%. हमने करप्ट प्रैक्टिस को बहुत डिटेल्ड दिया है पल्स हैंडरिटन नोट्स में. हमने अनड्यू इन्फ्लुएंस समझाया है पूरा. अब यार ये एनालिसिस तो देखो आपको करनी पड़ेगी ना, लेकिन जो कंटेंट है दैट हैज बीन गिवन. अब आपको मैं इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं. These notes that were launched in 2024, July 2024 actually. अब जब ये नोट्स तैयार किए ना तो हमें तो पता है कि यार जो जो पीवाईक्यूज हैं वी हैव टू एंश्योर कि वो टॉपिक्स कवर्ड हों. अब ये पीवाईक्यू में ऑलरेडी पूछा हुआ है. लुक एट दैट. Look at this. There is a need for simplification of procedure for disqualification of person found guilty of corrupt practices.
अंडर द आरपीआई एक्ट। मेरा ये पॉइंट है कि क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन हैज अ डिफरेंट थीम, डिफरेंट एनालिसिस। आई एम नॉट सेइंग दैट बोथ क्वेश्चन हैव अ डिफरेंट, और सॉरी, बोथ क्वेश्चंस हैव अ सेम थीम, नो। लेकिन ये मुझे पता है जब 2020 में पूछा है, so when we were preparing the notes, Pulse handwritten notes, we ensured that we give you the content on corrupt practices. We ensured that. And why? Because we know that sometimes the question can go beyond this, but along the line of corrupt practices. और वो इस साल आ गए फिर से। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि पीवाईक्यू लिंकेजेस। आप सोचो पीवाईक्यू लिंकेजेस से सर मेरे को एग्जैक्ट थीम पूछ ले, भैया क्वेश्चन की लैंग्वेज तो घुमाएंगे ना यार, कुछ तो मेहनत करेंगे ना। सिलेबस उतना ही है, वही पीवाईक्यूज अब 10 साल 12 साल हो चुके हैं, उसको आप और अपग्रेड करते जा रहे हो, सेम क्वेश्चंस निकलेंगे। आई एम गोइंग टू टेल यू दैट, ठीक है। सो देयर इज अ नीड दिस हैव अ डायरेक्ट, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं ये क्वेश्चन जो टफ था, अगर आपने सिर्फ वो हैंडरिटन नोट्स देखे होते या सिर्फ पीवाईक्यू में हमने जो उसका सॉल्यूशन दिया है, आपको करप्ट प्रैक्टिस सॉर्ट हो जाता, आपको अनड्यू इन्फ्लुएंस की मीनिंग पता चल जाती, फिर तो आप एनालिसिस थोड़ी खुद ही करोगे ना। This can help. देखो 80% I'm telling you, this can help in answering 70% of this question. The notes that we have given it to you, and that notes I'm telling you is based on the foundation of this PYQ. आप लोग PYQ को कैसे देखते हो I don't know, but we look at the PYQ, यार PYQ आया तो उसके अराउंड हम लोग क्या क्या दे सकते हैं। Next, look at this question. This was one. Fifth, Attorney General of India plays a crucial role in guiding the legal framework of union government, ensuring sound governance through legal responsibilities बताओ, उसकी rights बताओ, उसका limitations बताओ। Look at this. क्वेश्चन की बस लेंथ बढ़ा दी। जब 2019 में आया तब पता क्या बोले बच्चे, मैं भी मानता हूं, चलो उस टाइम की बात है कि सर इस पे हम कितना ही कंटेंट लिख लेंगे सर, हम तो सिर्फ लक्ष्मीकांत वाला पढ़ के गए, कोई बात नहीं। फिर हमने अपना पीवाईक्यू सूत्रा कोर्स लॉन्च किया दिस ईयर, पीवाईक्यू रिवीजन, एंड देन वी हैव गिवन डिसेंट इनफ कंटेंट, वो लोग हमने ऑलरेडी वो प्रूफ पे दिया हुआ है स्टूडेंट्स को। देन वी हैव गिवन डिसेंट इनफ कंटेंट, अब तो लिख सकते हैं ना, इसीलिए तो स्टूडेंट्स लिख कर आए इस बार, कहते हैं हाँ सर अब तो लिख कर आए बहुत सारा कंटेंट, कोई इशू नहीं है इस बार। Look at this question. Women's social capital complements in advancing empowerment and gender equity. अगर आपको सोशल कैपिटल पता है, you will directly go into women NGOs, you will directly go into women self help groups, directly आपका क्वेश्चन हो जाएगा। You will go into micro financing of women SHGs, सेम चीज ना, बस थोड़ी डिफरेंट लैंग्वेज में बोली है, सेम चीज। और मैं आपको पीवाईक्यूज दिखा देता हूं, ये तो मैं सिर्फ यहां पे 2 पीवाईक्यूज लाया उसके, ऑलरेडी एक्चुअल में इसके नंबर ऑफ पीवाईक्यूज। लुक एट दिस। Can the vicious cycle of gender inequality, poverty and malnutrition be broken through microfinancing of women self-help groups? क्या है women self-help groups? Nothing but social capital, women social capital. The self-help group bank linkage program, which is India's own innovation, proved to be one of the most effective poverty alleviation and women empowerment program. Not only that, I think 2023 में discuss the contribution of civil society. Discuss the contribution of civil society for, अब थोड़ा स्पेसिफिक पूछा उस टाइम पे, for increasing women participation in state legislatures. लेकिन अगर आपको सिविल सोसाइटी पता है, विमेन का हाउ द सिविल सोसाइटी कंट्रीब्यूट टू विमेन पार्टिसिपेशन, आप कैसे ये आंसर नहीं लिख पाओगे। आई एम वेरी मच श्योर कि इसको आप आंसर कर लोगे। नाउ हियर कम्स ये क्वेश्चन, ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स हैव अ बिल्ट इन बायस towards technology and backend integration than user-centric designs. Towards technology and backend integration than user-centric designs. Examine. My point is, आप मुझे एक बात बताओ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लिखने में टफ है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं, दिस क्वेश्चन इज टफ इन राइटिंग एन आंसर। अंडरस्टैंड, यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेरी वेल, बट मुझे बस ये बताओ दिस क्वेश्चन व्हाट इट इज आस्किंग। This question is focusing on the limitations of e-governance projects. Yes or no? अब उसके लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए, e-governance projects के बारे में पता होना चाहिए, yes or no? Then उसके factors that is hindering the adoption of e-governance, yes or no? तो वही सब factors, challenges ही तो हैं ये, बस यहाँ पे जो challenges पूछे गए हैं, the challenges are restricted to user-centric designs. And the projects that we are doing it focusing on this technology and backend integration.
सो मैं ये बोलता हूं दिस, ऐसे बहुत सारे ई गवर्नेंस के क्वेश्चन है जिसमें चैलेंजेस पूछे गए. दैट इंप्लीमेंटेशन ऑफ आईसीटी बेस्ड प्रोजेक्ट यूजुअली सफर्स इन टर्म्स ऑफ सर्टेन वाइटल फैक्टर्स. आइडेंटिफाई द फैक्टर्स एंड सजेस्ट मेजर्स. अब जब यहां पे आप फैक्टर्स आइडेंटिफाई करते हो तो डेफिनेटली यू डिस्कस अबाउट द इशू विद रिस्पेक्ट टू यूजर डिजाइन इश्यूज, द इशू ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेज थिंग्स, ऐसा नो. तो अब जब आप ये करते हो फैक्टर, जब चैलेंजेस पढ़ते हो, देन इट कैन बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन. अदरवाइज ये थोड़ा ज्यादा स्पेसिफिक क्वेश्चन, स्पेसिफिक. ठीक है, तो इसका लिंकेज मैं ऑटोमेटिकली बोलूंगा इसका 50% लिंकेज ही वाला, इसका आप 80% आंसर नहीं कर पाओगे. बट दिस क्वेश्चन अगेन, दिस इज इजी. Civil society organizations are often perceived as being anti-state actors than non-state actors. Anti-state actors than non-state actors. Do you agree? Justify. Look at this question. Basically, what it says, the question here it says that it is mainly looked as anti-state. तो जो perception issue होता है ना कि civil society is negatively affecting the development, they are doing or they are being used for routing of funds. जनरली एक नेगेटिव परसेप्शन है. यस और नो? तभी तो हम लोग क्रैक डाउन कर रहे थे एनजीओस पे. व्हाई? बिकॉज दे आर मेनली लुक्ड एज एंटी स्टेट. कुछ उनकी प्रैक्टिसेस की वजह से, वो जो प्रैक्टिसेस करते थे ट्रांसपेरेंट नहीं थे अपनी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में, तो होंगे, दिखेंगे ना एज एंटी स्टेट, बट दे आर एक्चुअली नॉन स्टेट. तो अगर आपको सिविल सोसाइटी के क्वेश्चंस पता है, बहुत क्वेश्चन है, उसमें आपको मेजर क्वेश्चन यही है कि चैलेंजेस ऑफ सिविल सोसाइटी जब आप लिखते हो तो वहां पे आता है चैलेंजेस कि यस द चैलेंजेस टू द सिविल सोसाइटी फॉल हियर. So can civil society and NGO present an alternative mode of public service delivery? Alternative means that is non-state, no? But what are the challenges here? What are the challenges? उसमें से 2-3 challenges आपके एंटी स्टेट के निकलेंगे. That they are mainly perceived as anti state. और क्यों, वो भी आपको मिलेगा. Clear? So this can be answered easily. India-Africa digital partnership is achieving mutual respect, co-development and long-term institutional partnership. Elaborate. अब अगर आपने PYQs देखे होते, आई थिंक आप पूरा इंडिया अफ्रीका अच्छे से पढ़ के जाते. Although question here is focusing on India-Africa digital partnership, लेकिन आप होते तो आपको पूरा पढ़ के जाते. If the last few decades were of Asia's growth story, the next few are expected to be of Africa's. In the light of this statement, examine India's influence in Africa in recent years. Examine India's influence in Africa. So basically, you are going to talk about the what initiatives have been taken by India for boosting its partnership with the Africa. और यहीं पे तो आएगा क्वेश्चन. Now here comes the another question. Constitutional morality. Clear? You explain the concept, apply this concept to ensure balance between judicial balance. अरे इतनी बार पूछ चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. ये तो आपको क्या 80 क्या, अगर आप सही से PYQ करते हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक है, आई एम डेफिनेटली श्योर कि 80 क्या आप 100% आंसर कर सकते हो. हाँ, अब आप पूछोगे सर कैसे अप्लाई करोगे, यार ये तो एनालिसिस है ना. ये एनालिसिस आपको कोई बुक में नहीं, ये एनालिसिस आपको मिलती है सिर्फ टीचिंग से. लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली हियर. Clear? Next, Indian Constitution has conferred the amending power on whom? Ordinary legislative institution. Ordinary legislative, parliament, ordinary legislative तो है, with few procedural hurdles. अब यही पूछा है, examine the procedural and substantive limitations on the amending power. तो procedural क्या है? Article 368. Substantive क्या है? Doctrine of basic structure. हो गया ना आंसर? Just look at this question. Is the limited power, it cannot be enlarged in the absolute power. Whether the parliament under Article 368 can destroy the basic structure? No, that's a substantive limitation which have been introduced in the Keshavananda Bharati case. तो आपकी अंडरस्टैंडिंग कैन हेल्प. ये तो ऑलमोस्ट 80% आंसर है. अगर आप ये करके गए तो 80% कैन आंसर दिस. Look at this. Discuss the evolution of collegium system in India. Advantages and disadvantages of the system of appointment of judges of Supreme Court of India with respect to the US. सिर्फ यहां पे जो आपकी एक एक्स्ट्रा जो PYQ के साथ एक्स्ट्रा है, that is mainly USA comparison.
अदरवाइज इवोल्यूशन ऑफ कोलेजियम सिस्टम, आप जब एनजेक इस क्वेश्चन के बारे में पढ़ोगे तो एनजेक अपॉइंटमेंट कमीशन जो आई है 2014 में, तो आप उससे पहले ये पढ़ोगे नहीं कि भैया कोलिजियम सिस्टम कैसे इवॉल्व हुआ है, देन व्हाई एनजेक हैज बीन कम इनटू प्लेस एंड देन हाउ सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन दैट, पढ़ोगे ना। देन यू विल आल्सो व्हाई इट स्ट्रक डाउन, जब पढ़ोगे स्ट्रक डाउन एग्जामिन करोगे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, डोंट यू थिंक यू विल डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। बस यहां पे अंतर ये कि यहां पे यूएसए के साथ भी कंपैरिजन करने को पूछा, ये सिर्फ इशू है। लुक एट दिस, examine the evolving pattern of center state financial relation in the context of planned development. How far have the recent reforms impacted the fiscal federalism? Look at this. There are actually more questions in federalism. You see, what changes has the union government recently introduced in the domain of center state relations? The measures to be adopted to build the trust between the center and the states for strengthening federalism. How do you think cooperation, competition, and confrontation have shaped the nature of federation? Cite some examples. This can be answered. Almost, I would say 60%. Inequality in the ownership pattern of resources is one of the major causes of poverty. Discuss in the context of paradox of poverty. अब यहां पे बेसिकली इन शॉर्ट आपके क्वेश्चन देखो, ब्रॉड थीम क्या है, कॉजेस ऑफ पॉवर्टी, बट कॉजेस ऑफ पॉवर्टी में यहां पे मेजरली फोकस किया गया है इनइक्वालिटी इन द ओनरशिप पैटर्न ऑफ रिसोर्सेस। चाहे वो इनइक्वालिटी आपकी लैंड में हो, ओनिंग ऑफ लैंड, चाहे वो इनइक्वालिटी इन दी अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एक्चुअली जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इनइक्वालिटी इन दैट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज द मेजर रीजन। तो यहां पे आपको क्वेश्चन उस पे किया, ठीक है। अब दिस आई वुड से ऑलमोस्ट 50% लिंकेज है, ये ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा, ये एक एनालिटिकल क्वेश्चन है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है अच्छी, यू विल नॉट बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन इवन आफ्टर गोइंग थ्रू द पीवाईक्यूज। द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स हैज टू एड्रेस द चैलेंजेस फेस्ड बाय चिल्ड्रन इन द डिजिटल एरा। देखो इसका एक पार्ट क्वेश्चन क्या है, challenges faced by children in the digital era. Look at this. Child cuddling is now being replaced by mobile phones. Discuss its impact on the socialization of children. तो कहीं ना कहीं आप वहां पे ऑलरेडी पढ़ लोगे that what are the challenges a child is facing in the context of the digital era. But here, examine the existing policies and suggest measures the commission can initiate. एक पॉलिसी आपको पता ही है, नेशनल चाइल्ड पॉलिसी, उसके मेन प्रोविजंस पीवाईक्यू में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। थ्रो लाइट ऑन द स्टेटस ऑफ इट्स इंप्लीमेंटेशन। क्लियर? This question is almost directly linked. Energy security constitutes the dominant kingpin of India's foreign policy and is linked with India's overarching influence in Middle Eastern countries. How would you integrate India's energy security with foreign policy trajectory in the coming years? Now look at this. The question of India's energy security constitutes the most important part of India's economic progress. Clear? Analyze India's energy policy cooperation with the West Asian countries. Same here. So ये almost completely आपका interlinked. Now look at this. GS3 की already हमने detail analysis की है और उसमें मैंने आपको बताया questions का किसके साथ PYQ linkages है. But still, I am showing here 11 out of 20 questions in GS3 are PYQ linkage. पहला ही question देखो. It was asked in second. What are the challenges the Indian economy before the Indian economy when the world is moving away from free trade and multilateralism to protectionism and bilateralism? How can these challenges be met? अब आपको मैंने बताया था इतनी बार क्लास में कि भैया ट्रम्प आया हुआ है, टैरिफ है, कोई बात नहीं, समझ गया मैं कि ट्रम्प है, टैरिफ लगा रहा है, जो वॉर चल रही है यूएस चाइना की। इससे पहले भी जब भी ट्रम्प आया है उसने उससे पहले भी प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी अपनाई थी। So when he came at that time in 2016-17, you must be remembering that he adopted the policy of America first. Again, he adopted that which kind of policy? Protectionism. तब ये क्वेश्चन आया था that the recent phenomena of protectionism and currency manipulation, how does it affect macroeconomic stability? इस बार भी ये आया, बस इस बार थोड़ा ब्रॉड ज्यादा है। इट्स नॉट जस्ट ओनली अबाउट दैट। यहां पे आपको सिर्फ यूएस और इसका नहीं बताना है, आपको बहुत सारी चीजें बतानी है, वो हमने मॉडल आंसर्स में आपको ऑलरेडी दिए, बट यू हैव टू थिंक अ लॉट हियर, मतलब यू हैव टू राइट मेनी थिंग्स। ठीक है? एक्सप्लेन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिसीजन ऑफ द फार्मर्स ऑन द सिलेक्शन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स।
हाई वैल्यू क्रॉप्स दैट इज मेनली हॉर्टिकल्चर। अब आप बताओ, ऑलरेडी ये 2023 में ना डिफरेंट वे पूछा है, एक्सप्लेन द चेंजेस इन क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया इन द कंटेक्स्ट ऑफ चेंजेस इन कंजम्पशन पैटर्न एंड मार्केटिंग कंडीशन। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चेंजेस इन कंजम्पशन पैटर्न एंड मार्केटिंग कंडीशंस। अब हमारा कंजम्पशन जब बढ़ रहा है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, फूड प्रेफरेंसेस, डोंट यू थिंक द हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन हैज ग्रोन? मैंने क्लास में भी बताया, इवन विद द फैक्ट that how much cropping pattern has shifted from the food crops to the non-food crops, that is mainly horticulture, how it has been shifted, the facts discussed here। और वही factors आपके इस बार क्वेश्चन कुछ और तरीके से पूछे, but this question can help you in answering here 70 to 80%। this elaborate the scope and significance of supply chain management। let me tell you, it is not bit difficult question, it's pretty easy, but PYQ से लिंकेज, जब आप यहां पे पढ़ते हो रोल ऑफ सप्लाई मार्केट इन द सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल और फूड आइटम्स, है क्या ये एग्रीकल्चरल कमोडिटीज है ना? यस और नो? और यहां पे जब आप पढ़ते हो तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट नहीं पढ़ोगे, पढ़ोगे ना? और जब ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट पढ़ोगे, सो डोंट यू थिंक कि यहां पे सप्लाई चेन मैनेजमेंट आपको पता चल गई, स्कोप पता चल गया, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट पता चल गई, यस और नो? देन व्हाट आर द इंपेडिमेंट्स, क्या चैलेंजेस हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, वो भी देख सकते हो। सो लाइक दैट ये, लेकिन आपको ऑलमोस्ट 50% आंसर रहता। Now, how can India achieve energy independence through clean technology by 2047 and how can biotechnology play a crucial? पहले तो आपको अगर एनर्जी इंडिपेंडेंस है, आपको पता होना चाहिए हमारी एनर्जी मिक्स क्या है। अगर आपको एनर्जी मिक्स नहीं पता है, लेट मी टेल यू, यू आर गॉन। ये आपको पता होना चाहिए एनर्जी मिक्स क्या है, तभी आप डिसाइड कर पाओगे कि फॉसिल फ्यूल का कितना शेयर है, रेन्यूएबल एनर्जी का क्या है, टारगेट्स क्या है। ये देखो क्वेश्चन पूछ चुके हैं पहले। सो यू सी, ये जब आपको नहीं पता फिर क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, डिफिकल्ट है। डू यू थिंक इंडिया विल मीट 50% ऑफ इट्स एनर्जी नीड्स फ्रॉम रेन्यूएबल एनर्जी बाय 2030? जस्टिफाई योर आंसर। हाउ विल द शिफ्ट ऑफ सब्सिडीज कैन हेल्प इन अचीविंग द अबव ऑब्जेक्टिव्स? है वही ना कि अचीविंग क्लीन टेक्नोलॉजी, क्लीन टेक्नोलॉजी। लुक एट दिस, न्यूक्लियर एनर्जी भी यहां पे वो भी तो आएगी। फिर बायोटेक्नोलॉजी पूछा है, ये क्या है? बायोफ्यूल्स आ गया यहां पे। सो माय पॉइंट इज, अलग अलग क्वेश्चन, द डिफरेंट क्वेश्चंस कैन हेल्प यू इन आंसरिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑलमोस्ट 70%। ये इजी था। टेररिज्म इज अ ग्लोबल स्कोरेज, हाउ हैज इट मैनिफेस्टेड इन इंडिया, सब एग्जांपल ये समझाया हुआ। टेररिज्म के 2-3 क्वेश्चंस आए। इवन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, कोई ऐसा नहीं, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म टेररिज्म कोई ऐसा आ गया कि रॉकेट साइंस, नो, very predictable। Examine the factors responsible for depleting groundwater in India. What are the steps taken by the government to mitigate such depletion of groundwater? कितनी बार groundwater पे क्वेश्चन पूछ चुके हैं ऑलरेडी। Look at this. Why is the world today confronted with a crisis of availability of and access to water resources? ये वर्ल्ड का पूछा, ये ग्राउंड वाटर। The ideal solution to depleting groundwater resources in India is a water harvesting system। तो आपको पहले बताओगे नहीं व्हाट इज द स्टेट ऑफ ग्राउंड वाटर, फैक्ट यहां पे मिलेगा नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। क्लियर? रीजंस, जब आप ये पढ़ोगे ये वाला क्वेश्चन, सो डोंट यू थिंक यू विल बी डिस्कसिंग द रीजंस हियर, एंड व्हेन यू डिस्कस द रीजंस, हाउ कैन इट बी मेड मोर इफेक्टिव, और स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, सब बताओगे। नेक्स्ट, एग्जामिन द स्कोप ऑफ द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इलैबोरेट द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। ये 2 क्वेश्चन 100% आपका आंसर दे देंगे इसमें। Write a review on India's climate commitment under the Paris Agreement and mention how they have been strengthened in COP26. Look at this. Outcome of the 26th session of the COP. Clear? Challenges to internal security and peace process in the northeastern states. देखो यहां तक तो ये पूरा आंसर है, ठीक है, लेकिन बस थोड़ा सा पार्ट ये कि सर वेरियस पीस अकॉर्ड्स दैट हैव बीन इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट इन द पास्ट डिकेड। ये आई थिंक थोड़ा यहां पे आपको पीवाईक्यूज में नहीं पूछा है, लेकिन हाँ जब आप पढ़ते हो नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी के बारे में तो आप हर एक के बारे में पीस अकॉर्ड पढ़ते हो। Why is maritime security vital to protect India's sea trade? Discuss maritime and coastal security challenges and the way forward. Exactly same. Exactly same. What are the maritime security challenges? Look at this. Discuss the organizational, technical and procedural initiatives taken. तो यहाँ पे आप way forward बता दो,
या व्हाट आर द इनिशिएटिव्स द गवर्नमेंट हैज टेकन, वो भी आपका हो जाएगा। सो आप ये देखो, माय पॉइंट इज गाइस दैट चलो आप 11 आउट ऑफ 20 नहीं लेते हो, 11 आउट ऑफ 20 नहीं लेते हो सकता है ना, आप सबके अपने अपने व्यूज होते हैं, 9 आउट ऑफ 20 ले लोगे। आप यहां पे 13 आउट ऑफ 20 नहीं लेते हो, 11 आउट ऑफ 20 लेते हो, 20 क्वेश्चन। यहां पे आप 7 आउट ऑफ 20, ये कंप्लीटली सेम, मतलब ये आपके 80% लिंकेज है। 7 जो मैं आपको बता रहा हूं, 60 में से 60 में से अगर आपके 27 क्वेश्चंस सिर्फ पीवाईक्यू से हो रहे हैं, व्हाट इज हार्म इन दिस, व्हाट इज हार्म इन दिस। अब अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे सर जीएस पेपर 4 का क्यों नहीं आप लेकर आए। देखो जीएस पेपर 4 एक डिफरेंट पेपर है गाइस, लेट मी टेल यू, जीएस पेपर 4 एक डिफरेंट पेपर है, उसका रिपीटेशन से ज्यादा ना द व्हाट मैटर्स इज द आंसर राइटिंग। इसमें भी आंसर राइटिंग मैटर करता है, बट इसमें आंसर राइटिंग से ज्यादा आपकी नॉलेज पॉइंट्स, बट एथिक्स इज अ डिफरेंट सेट ऑफ पेपर। सो आप ये देखो 60 क्वेश्चंस, जिसको अगर मैं बिल्कुल हटा के भी, वैसे तो 30 प्लस है, 11 प्लस 13 24 31 from the PYQs, but here out of 60 questions, even if I take 27 out of 60, almost 50% of the paper in mains 2025 has been asked from the previous PYQs, the 12-year PYQs that you have to do for. अगर आप नहीं कर रहे हो, अब आप मुझे बताओ, will you agree to that bold statement now? If you don't practice the PYQs, you are not going to qualify mains, you are not going to clear mains. और अगर भूल से, मैं बता रहा हूं 1 या 2% कर भी गए, उनका स्कोर नहीं होगा इतना ज्यादा कि वो इंटरव्यू से ज्यादा, मतलब बेसिकली दे गेट अ फाइनल रैंक। This is the time for mains 2026 aspirant, this is the time that you practice the PYQs. Practice, read the model answers, everything guys. And suppose if you do not want to take mains funnel, अगर आपको लगता है कि नहीं सर मेंस फनल जो है थोड़ा उसका प्राइस ज्यादा है ना, because there is good amount of effort that we are putting it in the mains funnel, what you can do is I would suggest to go through the mains PYQ sutra. In this we have given the discussions, we have also given you the model answers, we have also given you the model answers for each PY including 2025 मेंस 2025 के मॉडल आंसर भी इसमें है। क्लियर? So I hope that you must have enjoyed this PYQ analysis. See you guys. Take care. Study well.